I'll teach you something. Let's go deeper or okay, Matthew 17:15. मत्ती का 17-15। Here is a man. यहाँ पे एक व्यक्ति है, Lord, have mercy on my son, वो कहता है कि प्रभु मेरे बेटे पर तू दया कर, for he is an epileptic क्योंकि इसको मिर्गी की बीमारी है and suffers severely. और उसे बहुत कष्ट हो रहा For है, he often falls into the fire and often into the water. क्योंकि बार बार वो आग में और बार बार वो पानी में गिर पड़ता है। Now underline that epileptic. Epileptic means lunatic. अभी यहाँ पे मिर्गी की बीमारी जो लिखी, मिर्गी अंडरलाइन कीजिए अपने बाइबल में। ये मिर्गी का मतलब है पागलपन। In Greek, it is called moonstruck. और यूनानी में उसे कहते हैं कि Moonstruck. चंद्रमा का उस पर चंद्रमा उसको Moonstruck. मूनस्ट्रक। The word lunatic or epileptic means moonstruck. यानी ये वर्ड जो है मिर्गी, लुनेटिक का मतलब है कि वो जो है ओके। You might have heard the stories of the moonstruck. Chandrabari, very good. Chandrabari. When the Chandrabari was happening, sometimes in the water, sometimes in the fire. Can you understand this? तो कभी Good कभी sister. जो है चंद्र भारी उसके पता, तो कभी कभी उसको पानी में डालते तो कभी आग में। Was controlling this boy. यानी That moonstruck was controlling this boy. यानी ये चांद का जो असर उस पर हो रहा था, उसके द्वारा ये बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रहा That's था। why he was going. This boy was falling into the water, into the fire sometimes. इसीलिए वो पानी में तो कभी आग में गिर रहा था। The moon is controlling. तो वो चांद उसको नियंत्रित कर रहा है। जो गाना गाता है चांद सितारा, you are controlled by चांद सितारा. And that's why sometimes you fall in the lust and sometimes you fall in the ditch. इसलिए कभी कभी कोई लोग वासना में गिरते तो कभी खड्डे में गिर जाते। You understand this? I'm not getting that song. Okay, ठीक है. Thank you, Lord, for erasing those things. That means moon influencing, the moonstruck influencing on your mental health. यानी ये जो चंद्रमा है एक व्यक्ति के सेहत पर ऐसा असर करता है और प्रभाव भी And डालता also है, it is controlling your physical health. और तुम्हारा शारीरिक स्वस्थ पर भी असर Do डालता you है। know the science says क्या आप जानते हो विज्ञान ऐसा the कहता है, water is controlled by the movement of the moon. पानी जो है चंद्रमा के मूवमेंट से जो है वो चलता है। जब भी फिरता है वो कंट्रोल करता है. जैसे चांद जो जब फिरता है तो पानी उसके नियंत्रण That में is है। science. वो विज्ञान ऐसा कहता है। So if you are not born again, तो अगर आपका नए सिरे से जन्म नहीं हुआ है you are sunk in the moon. तो आप उस चांद के साथ डूब जाओगे। Hallelujah. That's what बचपन में ना, you see the moon smiling. I'm controlling you. Smiley. आजकल वो क्या ना, स्माइली आता है, तेल में डालो, आई एम कंट्रोलिंग यू. अरे बोलना. आजकल जो तेल में डालते हैं स्माइली को और फ्राई करते हैं, हाँ मैं तुझे नियंत्रित कर रहा In the हूँ। morning what rules? देखो सुबह में कौन सा चीज है जो आपको नियंत्रित The करता है? day is ruled by sun. तो ये दिन जो है सूर्य नियंत्रित करता है। Hallelujah. That's why when somebody, one of my friend was walking in the street and sunstroke, he got sunstroke. इसलिए मेरा एक दोस्त जब सड़क पर चल के जा रहा था, उसको सनस्ट्रोक हो गया, सूर्य का जो है किरणें उस पर जो है अटैक कर दिया। Who is controlling that man? Sunstroke. अभी वो आदमी को कौन कंट्रोल कर रहा है? My friend, are you sure that you are born again? मेरे दोस्त, क्या आप निश्चय जानते कि आपका नए सिरे से जन्म हुआ है? Can I hear an amen? Because my Bible says to the born again, sure born again. I'm using the word sure born again. तो मैं Not born again. मैं कह There रहा are हूँ more born नए agains. सिरे से जन्म हुआ नहीं, क्या आप खचित जानते कि निश्चित जानते कि आपका नए सिरे से If जन्म you're हुआ है? sure born again, the Bible says the moon will not touch you in the night times, अगर night watches. सचमुच में अगर आपको जो है नए सिरे से जन्म हुआ है तो हमारा पवित्र शास्त्र ऐसा कहता है कि चंद्रमा से तुझे हानि नहीं होगी। Hallelujah. The sun will not strike in the day times. दिन के दोपहर को भी सूर्य तुझे हानि नहीं करेगा। Are you there with me?
If you are sure born again, you are not under the influence of this controlling spirit or monitoring spirits. तो ये जो कंट्रोलिंग स्पिरिट है, मॉनिटरिंग स्पिरिट यानी निगरानी रखने वाली आत्मा, या जो ऐसे आत्माएं तुम पर कुछ भी नियंत्रण नहीं कर सकती हैं, कंट्रोल नहीं कर If you are सकती हैं। not still convinced, that is not my problem. अगर आपको इस बात को कन्विंस नहीं हो रहा तो मेरा प्रॉब्लम नहीं But है, I'll show you one scripture that will convince you now. लेकिन एक और वचन दिखाता हूँ जिससे अगर How आपको- come star, moon? क्यों ये तारे, क्यों ये Galatians चंद्रमा? 4, please. आइए Or 4:3. गलतियों का 4:3। Even so we, say with me, even so we, when we were children, were in bondage under the elements of the world. Can you see this? Can you see this? Say yes or no. Read now. गलतियों का 4:3 कहता है, वैसे हम भी जब बालक थे हाँ। तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। Means before Christ, यानी मसीह हमारे जीवन में आने से we are पहले, in bondage of these elements. यानी हम सब इस शिक्षा के बंधन में थे। The elements of the world means in Greek heavenly bodies. संसार की आदि शिक्षा का मतलब है ये सारे स्वर्गीय आकाश मंडल के सारे वस्तुएं। Hallelujah. In the Greek heavenly bodies, यूनानी के स्वर्गीय आकाशीय मंडल में, in the Greek, यूनानी में elements of this world means heavenly bodies called sun, moon, ये star. स्वर्ग आकाश के सारे तत्व, Sun, moon, star. Say with me, sun, moon, star. आकाश, तारे और चंद्रमा। Hallelujah. They were called the elements of the world. तो उसे कहते हैं कि पूरे संसार के एलिमेंट्स, Elements means vastu. वस्तुएं। Vastue. God give me the strength to speak Sanskrit. The second thing is the elements of this world in Greek it's called heavenly bodies. Heavenly bodies means sun, moon, stars. तो यहाँ पे यूनानी में इसका मतलब है स्वर्गीय स्थान के कुछ चीजें, उसका मतलब है सूर्य, चंद्रमा और तारे। What I mean to say is तो कहने का मतलब है heavenly bodies, the sun, the stars, the moon, सांसारिक चीजें या हेवनली स्वर्गीय का स्थान चीजें हैं, उसका मतलब है सूर्य, चंद्रमा और they तारे, control the immature Christians. जो मसीह में जो है, जो परिपक्व नहीं है, उन पर जो है चलाते हैं। It controls the immature Christians. You got it what I'm saying? जो बुद्धि नहीं कम रहती है उनकी ओर नियंत्रित करते हैं। That's what they have problem in the house. That's what they have bondage in the house. That's what money is having a problem in their house. इसलिए उनके घर में प्रॉब्लम है, उनके जीवन में बंधने हैं, They have इसलिए उनके sickness in घर the में house. आर्थिक स्थिति का समस्या है, उनके घर में बीमारियां आती हैं They becomes borrowers in the house. और लोगों के कर्जदार बन जाते हैं घर में। They become backbiters in the house. घर में वो लोगों के पीठ पीछे बातें करते Telling हैं, you without new birth, नए सिरे से जन्म लिए बिना। this celestial bodies can exercise influence on your life. तो ये जो सेलेस्टियल बॉडीज है वो तुम्हारे जीवन को नियंत्रित कर सकता है। Are you there with me? You have the Holy Spirit, आपके पास पवित्र आत्मा है, but the moon is controlling your destiny. लेकिन ये जो सूर्य है वो तुम्हारे भाग्य को चला रहा है। But from today onwards, it will lose its control over your life. लेकिन आज के बाद वो अपने सामर्थ को तुम्हारे जीवन से खो देगा। Hear an amen. कोई आमेन। It is going to be the end of the cycle. और ये जो चक्र है उसका अंत होगा। Can I hear an amen? I believe that I am not under the control of the star, moon and the sun because I am sure about my new birth. और मैं निश्चय जानता हूँ कि ये सूर्य, चंद्रमा और तारे के नियंत्रण में नहीं हूँ मैं, क्योंकि मेरे नए सिरे से जन्म हुआ है। Hallelujah. These elements of the world, heavenly bodies, ये जो स्वर्गीय स्थानों का जो तत्व है या चीजें हैं, it makes your future not real. तो ये आपके भविष्य को, वो फ्यूचर को रियल नहीं करता है। God is your future and He makes it real to you. क्योंकि प्रभु तुम्हारा भविष्य और वो सचमुच में खरा बनाता है तुम्हारे लिए। If you are not a Christian, अगर आप मसीह में नहीं हो, astrology can govern your directions. ये जो ज्योतिषी है तुम्हारे दिशाओं को बदल सकता है। That's why many people सुबह उठते पेपर खोल के क्या राशि राशि देखता है. You got it?
You're not surely born again. I'm telling you this. इसलिए कुछ लोग हैं जब सुबह सुबह उठते न्यूज़पेपर को खोलकर अपना राशि को पहला देखते, यानी मैं कहना चाहता हूँ कि फिर आपका नए सिरे से जन्म नहीं हुआ है। Even if you don't believe in astrology, अगर आप उसमें विश्वास भी नहीं करें ज्योतिषी पर, but Bible says the heavenly bodies can still rule your life in the natural. बाइबल कहता है कि नेचुरल में जो चीजें हैं तुम्हारे जीवन पर राज्य कर सकता है। Say with me, stars. Star cannot control me. Amen. My moon cannot control me. My moon cannot control me. My sun cannot control me. My sun cannot control me. That's what you are. Sometimes you are controlled. So, if you are not under the control of these elements, you are surely born again. तो अगर ये वस्तुएं तुम्हें चला नहीं रही है तो सचमुच में तुम्हारे नए सिरे से जन्म हुआ है। Oh, I am attending church every Sunday. हाँ, मैं कलीसिया को हर इतवार को आता हूँ। Are you sure you are born again? क्या आप श्योर हो कि आपके नए सिरे से जन्म हुआ है? Attending the church is not born again. कलीसिया में आने का मतलब नहीं कि आप नए सिरे से जन्म हुआ है आपका। You must be sure why you are attending the church. आप कलीसिया में क्यों है उसके आपको खातरी से जानना जरूरी है। Being born again frees you from the power of the elements of this world. और नए सिरे से जन्म लेना आपको ये संसार के जितने भी अधिक सामर्थ्य अंधकार के शक्ति है उससे तुम्हें आजाद करता है। Astrology can only control the person who is not born again, is sure born again. और एक व्यक्ति को ज्योतिषी उसी व्यक्ति को नियंत्रित कर सकता है जो सचमुच में जिसने नए सिरे से जन्म नहीं लिया। But astrology cannot control the new birth. और नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति को ज्योतिषी छू नहीं सकता। You are missing something here. I said astrology cannot control a new creation. एक नए सृष्टि के व्यक्ति को ज्योतिषी नहीं छू सकता है। Astrology can only control those who are not born again. याद रखें कि ये जो ज्योतिषी है ये केवल उन्हीं लोगों को नियंत्रित कर सकता है, चला सकता है जिनका नए सिरे में सचमुच में जन्म नहीं हुआ। But astrology cannot control the one who is having sure born again experience. लेकिन एक व्यक्ति जानता है कि मैं सचमुच में मेरे नए सिरे से मेरा जन्म हुआ है, उस व्यक्ति को ये ज्योतिषी बिल्कुल छू नहीं सकता। A new birth cancels the power of the astrology. तो नया जन्म जब हम लेते हैं वो सारे ज्योतिषी के जितने भी सामर्थ्य उसे वो रद्द कर देता है। Can I hear an amen for this? If you're born again, you say hallelujah. John chapter 3 verse 3 to 7. यूहन्ना का 3 अध्याय 3 से 7। Here is a man comes to Jesus. यहाँ एक व्यक्ति है जो यीशु के पास आता है। His name is Nicodemus. उसका नाम है निकोदेमस। Jesus spoke 3 things to him. यीशु मसीह ने 3 चीजें उससे कही। What did he say? Jesus answered and said to him, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Number 1. तो यीशु मसीह कहता है कि मैं सचमुच में तुझे कहता हूं यदि कोई व्यक्ति नए सिरे से जन्म न ले तो वो परमेश्वर के राज्य तो नहीं देख सकता। Hallelujah. If you're born again, यदि आपका नए सिरे से जन्म हुआ number 1, the astrology cannot control you. पहला मुद्दा ज्योतिषी आपको नियंत्रित नहीं चला नहीं सकता। Number 2, go ahead. Nicodemus said to him, how can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? निकोडेमस ने उसे कहा कोई आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद फिर जन्म कैसे ले सकता है? निश्चय क्या वो अपनी माँ की कोख में प्रवेश करके दोबारा को जन्म ले नहीं सकता? Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. 5वां वचन कहता है कि यीशु मसीह ने उसे कहा कि जवाब दिया, सच्चाई तुम्हें मैं बताता हूँ यदि कोई आदमी जल और आत्मा के से जन्म नहीं लेता तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं पा सकता। What do you mean be born of water? पानी से जन्म लेने का मतलब, जल से जन्म लेने का मतलब क्या है? Before you came to this earth, इस धरती पे आप आने से पहले you were in your mother's water bag, that is born of water. आप आपके माँ के कोख में थे, पानी के अंदर थे। Are you getting something? That bag was full of water. You're born of water. That is called natural birth of the flesh. तो यानी That's what Nicodemus is talking about. अभी आपके माँ के कोख में जब आप थे, माँ के कोख में वो
जल था, पानी था, उस पानी के अंदर वो प्राकृतिक रूप से आपने वो पानी के द्वारा बाद में जन्म लिया। Jesus is telling you need to be born of the Spirit. Next verse. और आगे यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें आत्मा में जन्म लेना है। Hallelujah. What is the born of the Spirit? आत्मा से जन्मने का मतलब क्या है? It is called spiritual birth. उसे कहता है आत्मिक जन्म। Natural birth is for the flesh. When you are in the mother's womb, you born of the water. प्राकृतिक जन्म जो है वो शरीर का है। जब तुम माँ के कोख से उस पानी में थे, उसके बाद जन्म लिया What है। is the spiritual birth? तो ये आत्मिक जन्म का You're मतलब क्या है? convicted for your sin. You realize God is the Lord of my life. I should not live in sin. You born of the Spirit. अभी आपका परमेश्वर, आपको पता चला आपका पापों का आपको एहसास होगा, आपको समझ में आया कि यीशु मसीह को मेरा प्रभु बनना है और आपने अपने पापों का पश्चाताप करके उसे अपने जीवन में अपनाया। Born of the Spirit is spiritual birth. आत्मा में जन्म लेना वो एक आत्मिक जन्म And है। then you're a new creation. और उसके बाद आप नए सृष्टि बन जाते हो। When I am in the mother's womb, जब मेरे माँ के गर्भ में हूँ, I'm born of the water उस in the पानी, flesh. वो शारीरिक जन्म हुआ है, मेरा शरीर से जन्मा हूँ पानी के द्वारा। I continued with the स्वभाव of my parents, तो forefathers. मेरे माँ बाप, मेरे पूर्वजों के स्वभाव में मैं जन्मा हूँ। But when I'm spiritually born again, लेकिन जब आत्मिक रूप से मेरा नया when जन्म I'm होता born है, of the Spirit, जब आत्मा के द्वारा मेरा नया जन्म होता है, I'm spiritually born. हम आत्मिक जन्म I'm a हो new गए। creation. मैं एक नए सृष्टि बन गया हूँ। Hallelujah. That's what Jesus said. That which is born of the flesh is flesh. इसलिए- That which is born of the Spirit is spirit. इसलिए यीशु मसीह ने कहा है जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है और वो जो शरीर से जन्मा है वो शारीरिक Can I है। hear an amen?